Hello everyone, my name is Shubhi Chaube and I have cleared IBPS SO IT officer exam in the year 2019 with an overall rank of 12 and first rank in Union Bank IT officer batch of that year. I'm here to share certain tips for your interview preparation. So if you're watching this video, I hope you have cleared the prelims as well as the mains and you are here to prepare for the interview. For all those who were not able to make it till the stage, who were not able to clear the prelims or the mains, I would really want to tell you that there are so many exams lined up, and apart from that, you can appear for this exam in the next year as well. Definitely whatever you have learned is not going to go in vain. It is going to be very useful for you in your future exams as well. So don't be disheartened. So in this we will be discussing few things that how you can approach the interview, because we are having three stages in the exam: prelims, mains and interview. Now every exam, every stage requires a different approach, but still prelims and mains are somewhat similar in the way that you have to do MCQs there, although the subjects are totally different. But still the thing is, there you have to do the objective question. But here in interview, the approach, the preparation strategy becomes extremely, you can say, different from that what we have done in the initial two stages. But one thing remains constant: we have to make sure that the concept is clear. Whatever the syllabus is, we are able to, and the second thing is, we are able to put it, whatever we have studied, whatever we have it's possible we have read a lot of things, but if we are not able to recall it in the prelims or mains, or if we are not able to put it in words in the interview, it is not going to be of any use. Another thing that I want to add in here is, for the aspirants who are not having any prior experience and who are thinking that they might have any disadvantage, so not at all. I really want to tell you all that it's a pure myth that it is going to affect in any way. No. If you are working somewhere, the main difference here is, if you are working somewhere, you can tell them that okay, I was working in this thing and I can contribute in the bank using these things. All right, that's just a point that you can include. But for those who are not working, who are just preparing for now, so you all are having as much chances as any other aspirant. You just have to put in all the knowledge, everything really clearly. Okay, तो आप कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता है दोनों एस्पिरेंट्स में, सभी इक्वल हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे ऐसा. और मोस्ट ऑफ द people who get selected, they are mostly freshers. Okay, so it's not even a point. I just saw a few comments in the previous video, so I wanted to clarify this thing. All right, so let's begin the discussion. चलिए, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू को अप्रोच किस तरह करें. तो देखिए, आपका जो इंटरव्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपके कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे. अब अगर आप टेक्निकल क्वेश्चंस को 70% टाइम दे रहे हैं, तो आपको 30% टाइम जेनरिक क्वेश्चंस को भी देना है. जेनरिक क्वेश्चंस क्या हैं? तो जेनरिक क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, ये हमारा बोनस क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो आपको उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर प्रिपेयर करना है. उस आंसर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करनी है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक पहला इंप्रेशन छोड़ता है. तो इंटरव्यू में आपको ऑनेस्ट रहना है. आपने जो भी, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करिए उस आंसर में. अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक के, आप एक फ्रेशर हैं, तो आप उस चीज़ को उस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, उनको बहुत ही अच्छे से उस आंसर में फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, तो आप अपना एक और बेसिक चीज़ें होंगी. बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है आपके पास वो आंसर देने के लिए, तो आप बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं. आप अपना नाम लेंगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ आपका पास्ट, जैसे कि आपकी जो आपने, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसके बारे में बताएंगे. तो आप इस ऑर्डर में चलेंगे, आप पीछे होते हुए, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही स्कूल डेज का डिटेल्स बता रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है.
अपना इंटरेस्ट, अगर आप जैसे आईटी में इंटरेस्टेड हैं, आप जैसे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, तो किसी तरह अगर आप उसको आंसर में रख सकते हैं तो आप उसे ज़रूर रख सकते हैं। अगर जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जो भी आपका मोटिव है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इस कारण मुझे बैंक में, या मुझे आईटी ऑफिसर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा आईटी पार्ट बहुत ज़्यादा, मुझे कोडिंग बहुत पसंद थी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका कुछ भी जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेट करता है कि आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहते थे, तो आप इधर पे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आंसर है। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या मोटिव है, उस तरह से आप इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आप आएंगे टेक्निकल क्वेश्चन में। तो जेनेरिक आप बहुत ही ऑनेस्ट रहें, जो भी ऑनेस्टी से जो भी आपका प्रोफाइल है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको पुट इट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला होता है जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कि आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, और दूसरा पार्ट होता है आपको थोड़ा होमवर्क करना है, कि आपको सर्च करना है जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई करंट अफेयर्स हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ढूंढना है, उन पे आपको आइडिया होना चाहिए। वो आपसे किसी भी तरह किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं, तो being from appearing for the interview for IT officer, you should be aware of the recent technologies or recent trends in the IT. Okay, तो वो आपका बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा जैसे कि सब्जेक्ट्स देखिए, एक सब्जेक्ट हो गया आपका आईटी सिक्योरिटी, तो उससे रिलेटेड आप रीसेंट कोई ऐसा कुछ भी साइबर अटैक हुआ हो किसी भी बैंक में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस सब को सर्च करिए, जिसमें जब आप आंसर दे रहे हो, मान लीजिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आईटी का रोल क्या है बैंक में, तो आप सभी को पता है आईटी का रोल क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि आजकल आपकी हर ही चीज़ डिजिटल हो चुकी है, और कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में कितने ज़्यादा हर हर एस्पेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बैंकिंग में आईटी का क्या रोल है, तो उसमें आपको अलग अलग सेक्शंस रखने हैं। जैसे एक हो गया आपका आईटी सिक्योरिटी। अब बैंक डिजिटलाइजेशन और आपका जो भी कंप्यूटराइजेशन था, सबके कारण कन्वीनियंस तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी कितने आ गए हैं। तो यहाँ आप आईटी ऑफिसर्स का रोल और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना ज़रूरी है एक प्रॉपर आईटी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना हर बैंक में, कितना ज़रूरी है ये पार्ट बैंक्स में। तो ऐसे करके आप अलग अलग सेक्शंस जो हैं, आप अपना प्रोफेशनल नॉलेज ही उठाएंगे, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी रिलेट करके, और आप उनको बहुत ही अच्छा सा एक आंसर दे सकते हैं कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में आईटी का यूज़ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब हम स्पेसिफिक्स पे आते हैं, जैसे कि जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो एक रफ आइडिया देखते हैं कि हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका डीबीएमएस आता है। अब डीबीएमएस में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो अगर हम इन जनरल देखते हैं कि डीबीएमएस के बारे में, तो देखिए, बेसिक क्वेश्चंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। उसके बाद वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। तो जो आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया है वो डेफिनेटली आपको मदद करने वाला है। और अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, और आपको लगता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेंस का सिलेबस एक बार दोबारा देखेंगे, और स्पेशली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स with a focus on IT security and your data structures and operating system. These things you cannot leave. Okay? तो ठीक है। इसके अलावा वो आपसे डीबीएमएस में क्या क्या पूछ सकते हैं? तो जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि 3 लेवल्स क्या होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या लेवल्स होते हैं डेटा
डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। तो आपके पास फिजिकल लेवल होता है, आपके पास लॉजिकल लेवल होता है, आपके पास व्यू लेवल होता है, ठीक है। तो ये लेवल्स होते हैं, उनको आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं कि जैसे कि आपका फिजिकल लेवल है तो उसमें लोएस्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है, जैसे हमें पता है। तो वो आपको डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया गया है। आपका जो लॉजिकल लेवल होता है उसका आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जैसे लॉजिकल लेवल है तो वो नेक्स्ट लेवल है, उसमें क्या हो रहा है, तो वो ये बताता है कि जो भी डेटा आपका स्टोर किया है आपने, वो डेटा की आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। मैं अगर आज एक घर बना रही हूँ तो मुझे एक मैप पहले प्रिपेयर करवाना है। तो मुझे पता होगा कि फ्रंट जो लिविंग रूम है उधर से किचन में जाने के लिए क्या रास्ता होगा, लिविंग रूम से कौन सा रूम कनेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम मैप में प्रिपेयर करते हैं पहले। तो आप इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उसके बाद होता है आपका व्यू लेवल। तो वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये करके आप उसको समझा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। आप कोई वेबसाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एब्स्ट्रैक्शन समझाने के लिए कहा गया है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो हमको पता है कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स वो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो आप उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कार सीख रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा वायर किस वायर से अटैच्ड है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंटरनल मैकेनिज्म क्या हो रहा है, जब आप एसी ऑन करते हैं तो उस बटन को प्रेस करने से क्या हो रहा है, मतलब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना जानने की ज़रूरत है कि हाँ, ऐसे गाड़ी स्टार्ट होगी, ऐसे आप एसी ऑन कर सकते हैं, हर चीज़, ठीक है? तो एक मैकेनिकल इंजीनियर या फिर एक मैकेनिक, उनको ये जानकारी होगी, लेकिन हर इंसान को ये जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अननेसेसरी फॉर अस, ठीक है। तो हमेशा अपने आंसर्स को आप किसी किसी भी तरह के एक आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे, तो उनको एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ, आप सिर्फ किताब पढ़ के नहीं आए, आप सिर्फ वो कहते हैं कि रट के नहीं आए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपके क्वेश्चन हो सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे। आपको पूछ सकते हैं कि कुछ कमांड्स बताइए जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हैं। उसके बाद आपसे डीएमएल कमांड्स पूछ सकते हैं जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हैं। फिर वो आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ड्रॉप कमांड क्या ये डीडीएल कमांड है या फिर ये डीएमएल कमांड है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये भी आपको एक नज़र देखना है, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो जैसे कि आप रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में एक बेसिक्स पूछ सकते हैं। जैसे जो जो उसके ऑपरेशंस होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, उसके बारे में पूछ सकते हैं। सिलेक्ट या फिर प्रोजेक्ट या फिर सेट डिफरेंस जो भी होते हैं, तो उनको नेम करने के लिए कहा जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है मेंस में, वो चीज़ें आपको काम आनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो आप उसको समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डीबीएमएस का इंटरव्यू, कह सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए सबसे सूटेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन जो कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे है, एसेट प्रॉपर्टीज पे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेट प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या पर, अब देखिए, एक होता है मीन्स, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि क्यों करना है नॉर्मलाइज। अगर एक टेबल है, क्या ज़रूरत है आपको नॉर्मलाइज करने की, क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्मलाइजेशन की, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जो कि प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा वो कह सकते हैं आप, यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं कहेंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, बेसिक चीज़ें, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। बेसिक चीज़ें जैसे कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आपको अगर आप मीन्स क्लियर करके आए हो यही क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। ऑलराइट, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गई आपकी, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। ईआर डायग्राम है, ईआर मॉडल जो है आपका, तो उसमें कोई भी ईआर मॉडल का पर्पस क्या है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, इसका इसमें
किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास वो भी ऑप्शंस हैं कि किस चीज़ को आप कैसे बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलेशनशिप्स हैं तो उनको आप कैसे दिखाते हैं, वो डायमंड से आप शो करते हैं। उसके बाद कोई एंटिटी है तो उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो यूनिक जो भी आपका उस टेबल की होगी उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक नोटेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि होती क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में फ़र्क क्या है और ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए कि वीक एंटिटी वो है जिनके पास खुद की कोई भी एक ऐसा सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है टू फॉर्म अ प्राइमरी की। ओके, तो हमको पता है कि वो होती है हमारी वीक एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया कि आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का कोई एग्जांपल दीजिए। तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, मल्टी वैल्यूड है, एक इंसान के कई कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल, तो आपका एड्रेस है, तो सिटी है, जिप कोड है, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंपोनेंट्स होते हैं उसके, है ना। तो आप इन चीज़ों को बेसिक एक ऊपर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीबीएमएस के बारे में। आई थिंक यही सब चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट हैं। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो ये नहीं कह रहे हो कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये एक बेसिक आइडिया है कि क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होंगे आपके कॉन्सेप्चुअल, बहुत कॉन्सेप्चुअल। अगर आपने मेंस लिखने के लिए सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी होती हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो इंटरव्यू में वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें ये समझाइए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मान गए कि इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी ये है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप कैसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो वो ये चेक करेंगे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हो गया आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जब आईटी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके बैंक में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है। तो आप उस पर काम कर रहे होंगे तो आपको इसकी भी बेसिक चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। टोपोलॉजीज और इस तरह की चीज़ें तो हम सबको ही पता होती हैं। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लैन या फिर बैंक्स में कौन सी टोपोलॉजी मोस्टली यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिकलिटी से उसको रिलेट करिए, जो भी आपने मेंस के लिए पढ़ा है उसको आप बैंक से रिलेट करिए। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो हो सकते हैं जैसे कि हर तरह की टोपोलॉजी को आपने अच्छी तरह से देख लिया, वो तो खैर बेसिक चीज़ है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नेटवर्क में डिटेल में भी हो सकता है, जैसे कि डाउन टाइम से रिलेटेड, जैसे कि मोस्टली नेटवर्किंग क्वेश्चंस आईटी सिक्योरिटी एक उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आईटी सिक्योरिटी आपको सभी तरह के अटैक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा साइबर अटैक क्या होता है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी हर साइबर अटैक के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें जैसे बैंडविड्थ क्या होती है, और नोड क्या होते हैं, लिंक क्या होती है, गेटवे क्या होते हैं, हब क्या होते हैं, राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, इनमें से किसी भी दो के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि मोस्टली बहुत सारे लोगों से वो क्वेश्चन पूछे गए थे नेटवर्किंग डिवाइस की। कुछ कॉन्सेप्ट मतलब ये चेक करने के लिए था कि आपने डेफिनेशंस तो पढ़ी हुई हैं, क्या आप इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपने इंडिविजुअल डेफिनेशंस तो पढ़ी हैं, तो क्या आपने सिर्फ रट ली थी वो डेफिनेशंस, या आपको एक्चुअल मतलब भी समझ आ रहा है। तो उसके लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएस कितना कॉमन क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये, क्या होता क्या है एग्जैक्टली exactly? तो जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप क्या पूरा एड्रेस टाइप कर रहे हैं, आप तो एक नाम टाइप कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे करके उनको पूरा एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छी तरह से, सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो डीएनएस फॉरवर्डर क्या होता है। ठीक है,
फिर आपका एनआईसी क्या होता है, जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जो यूटिलिटी हैं, जैसे कि आपकी नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सारे तरह के जितने होते हैं, उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें यूटिलिटी आपको कोई एग्जांपल देना है उसका, तो आपको उसका भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, जो आप एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा, प्रोटोकॉल्स आपके सारे लेयर्स के इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओएसआई मॉडल में आपने एप्लीकेशन लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने एसएमटीपी वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सभी के पोर्ट नंबर और हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी यूसेज क्या है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा IPv4 IPv6 का डिफरेंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था। IPv4 और IPv6 का डिफरेंस, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइवेट आईपी क्या होता है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, जो आपका कह सकते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में। प्रोटोकॉल्स आपके लिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज़ नहीं पढ़नी है हमको, लेकिन प्रोटोकॉल्स हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा आप जो ओएसआई मॉडल की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया गया कुछ एक स्पेसिफिक हर लेयर का, ओएसआई मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग का, तो उसको हम नहीं मिस करते हैं। तो उसमें आप एक आइडिया ले लेंगे कि जो बेसिक चीज़ें, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं हर लेयर में, तो आपको फंक्शनिंग समझ आनी चाहिए और वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए। कहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किधर होती है, तो पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या बताता है, उसके बाद आपका जो मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, सब चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, और ये नहीं है कि आपने बस इतना पढ़ लिया और हो गया, आपको ब्रशअप तो आपका पूरा प्रोफेशनल नॉलेज करना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। राउटिंग क्या होती है, और आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो राउटिंग होती है वो क्या होती है, इंटरनेटवर्किंग क्या होती है, फिर उसके बाद आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन क्या होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, तो इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस क्या होता है। ये तो हम जानते हैं कि यूडीपी और टीसीपी में, टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, यूडीपी कनेक्शन लेस हो गया, लेकिन उसके मायने क्या है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, और वो किस तरह से कोई चेंज क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से। देखिए, हम दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कहते हैं कि ये फास्ट है, ये स्लो है। क्यों स्लो है, ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक आप एक नज़र देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो सभी लेयर्स का एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप सभी ने मेंस के लिए ये सब पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, तो जो आरआईपी होता है उसके बारे में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके अलावा टीसीपी आईपी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, तो पिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो एक तरह का यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, जो आपको चेक, इट बेसिकली अलाउज यू टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। तो ये बहुत यूज़ होने वाली भी चीज़ है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पिंग कमांड क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम, तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है नेटवर्किंग में। अगर मैं कह रही हूँ कि एड्रेस शेयरिंग है, तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो एल्गोरिदम्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, आईटी सिक्योरिटी के जो आपके एल्गोरिदम्स हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, तो उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है।
तो उनको आप एक नज़र देख लेंगे। इसके अलावा और क्या होगा? तो इसके अलावा मेरे ख़्याल से हमने ज़्यादातर चीज़ें बात कर ली हैं नेटवर्क की। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या देख सकते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने मेंस के लिए जो पढ़ा है वो चीज़ें तो सफिशिएंट हैं ही। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉकेट क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉकेट क्या है। वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि उसका पर्पस होता है, कोई भी 2 डिवाइसेज़ हैं, 2 एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, तो उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, है ना? तो एंड पॉइंट्स जो होते हैं उन कनेक्शन के, वो कहलाते हैं सॉकेट, ठीक है? तो इसके अलावा कर्नल, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कर्नल क्या होता है, क्योंकि वो कोर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कर्नल होता क्या है, ठीक है? तो कर्नल के बारे में आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंस क्या है प्रोसेस और थ्रेड में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? एक और चीज़ होती है कि आपकी जो प्रोसेस है उसके स्टेट्स क्या होते हैं डिफरेंट। तो हमको पता है न्यू प्रोसेस होती है, फिर वो रनिंग प्रोसेस भी होती है, वेटिंग होती है, रेडी होती है और टर्मिनेटेड होती है, ठीक है? तो जो स्टेट्स हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते आना चाहिए। वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मैंने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आके रखा चुकी है, तो अब वो कौन से स्टेट पे रहेगी। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस रनिंग थी, इन बिटवीन उसने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रुकना पड़ा, तो वो वो प्रोसेस अभी किस स्टेट पे रहेगी। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि इन सभी स्टेट्स में क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं, इसके अलावा पेजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं इधर पे, क्योंकि इंटरव्यू ओरिएंटेड नहीं है वो टॉपिक उतना। डिमांड पेजिंग बस एक आइडिया आपने मेंस में ले ही लिया होगा इन चीज़ों का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्चुअल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझाते आना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी टेक्निक होती क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थ्रैशिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, आप मान लीजिए कि ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कंडीशंस क्या होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस जो होती हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से डिफाइन कर देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आप और क्या देख सकते हैं, तो इसके अलावा आप मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, बाकी आपने मेंस के लिए पढ़ा ही होगा, तो उन चीज़ों को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बैंकर्स एल्गोरिदम है वो देखिए उस पे तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए होता है, क्यों उसको बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों कहते हैं। तो उसको बैंकर्स एल्गोरिदम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बैंकर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था टू चेक कि वो कितना फंड कह सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ लोन्स दिए, कुछ डिपॉजिट बैंक में आए और हमने कुछ लोन भी दिए। अब जितने डिपॉजिट आ रहे हैं उनमें से मैं कितना पार्ट लोन दे सकती हूँ। देखिए, कल को अगर कोई डिपॉजिटर आ जाता है और वो अपने फंड्स वापस मांगते हैं, तो आई शुड बी इन अ पोजिशन टू पे देम, राइट, टू गिव देयर फंड्स बैक टू देम। तो टू कैलकुलेट अ सेव स्टेट, इसीलिए उसको बैंकर्स एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, मेंस में वो आपके कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने किताबों में नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम कई बार उनको सर्च करते हैं कि ऐसा क्यों है या फिर यहाँ क्या यूज़ होता है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिक आइडिया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? स्पूफिंग क्या होती है, स्पूलिंग क्या होती है, ठीक है? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको भी आपको एक तरह से आइडिया होना चाहिए। सेमाफोर्स क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आप एक नज़र देख सकते हैं। बेलिडी एनोमली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गोरिदम है जो बेलिडी एनोमली से सफ़र करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये। क्यों? इसको आप फीफो एनोमली भी कहते हैं। तो अगर आप फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी आपका पेज फॉल्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं उससे आपके पेज फॉल्ट कम होने की जगह बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है?
तो उस केस में आपका बेलेडीज एनोमली कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन और डेडलॉक में फ़र्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको पता है कि डेडलॉक तो ऐसा स्टेट है जहाँ से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, वो तो एंडलेस वेट है ना। स्टारवेशन आप बहुत लंबे समय तक वेट कर रहे हैं लेकिन आपको पता है आपका टर्न आ रहा है। डेडलॉक तो इनफाइनाइट वेट है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप समझा पाएँ, ऐसा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने मेंस के कॉन्सेप्ट। ओवरलेस क्या होते हैं आप एक नज़र देख सकते हैं। ट्रैशिंग क्यों होती है, कैसे होती है, ये देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अच्छी तरह देख लें। जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं उनको देख लें, वाटरफॉल मॉडल हो गया और जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, इस तरह से आप मॉडल्स को ज़रूर देख लें। ठीक है, इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या हो गया, तो आपसे पूछ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछेंगे कि बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस क्या है और बेस्ट केस क्या है। वो मोस्टली आपसे ये पूछेंगे कि अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है तो उस केस में ये वाले एल्गोरिदम से क्या होगी, या अगर ये सॉर्टेड अरे है तो मुझे इन तीनों में से कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी इधर पे फेवरेबल कौन सा है। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है ना। हमने जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसे भी एल्गोरिदम है जिनमें ऑलरेडी सॉर्टेड अरे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ज़्यादा रहती है जिन केसेस में। तो आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों को भी समझ लेना है, सिर्फ सॉर्टिंग देखना है और कुछ भी नहीं। तो सॉर्टिंग में आपको क्या करना है, कोड नहीं लिखना है लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है इधर से। क्या आता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, इन कॉन्सेप्ट को अगर वो डिफाइन करने कहते हैं तो ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये तो हमको आना ही चाहिए। तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हैं। उस चीज़ की डेफिनेशन समझा दें, उसका कोई एक एग्जाम्पल समझा दें, उसमें वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गए हमारे प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं वापस हमारे जेनेरिक बातों पे। तो देखिए, ये सब तो हो गया पढ़ने का, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इंटरव्यू में आपसे सभी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्योंकि देखिए, अगर इवन आपका लेवल बहुत ही हाई है, तो अगर आपका लेवल ये है तो वो आपसे यहाँ तक भी पूछेंगे। तो मेन इंटेंशन होता है आपका अप्रोच देखना कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। आपका अप्रोच बहुत ही अच्छे, एक लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप वाइल्ड गेस मत करिए। आप ऐसा मत करिए कि आप उनको फूल कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है इतने साल का। उनको पता है कि आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं उनको फूल करने की, वो आपको नहीं करना है। आपको उनसे पूछना है कि मैं, हालांकि ये चीज़ पूरी तरह रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक गेस करना चाहूँगी इस मैटर में। तो अगर वो कहते हैं कि प्लीज़ गो ऑन, तो आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा ना करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली जानबूझकर जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं उसको भी आप गलत आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट टू फूल देम। वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आप उस चीज़ को क्लियरली बता दें कि ये मुझे 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे वो एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके इंटरव्यू में। जितना आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे उतना आपको बहुत ही प्लस पॉइंट्स मिलेंगे उसके। और किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट मत होइए। आप सभी इक्वल लेवल पे स्टैंड करते हैं और आपको अभी कुछ नहीं सोचना है, मेंस के मार्क्स नहीं सोचने हैं। बहुत लोगों को लगा मेंस ट्रिकी था, बहुत लोगों को लगा कि उनके मार्क्स कम थे। इट्स ओके, अभी आपके पास जो चांस है आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मेंस में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस क्या है। अगर ना भी हो तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। अगर मान लीजिए कि बहुत कम मार्क्स भी हैं मेंस में, तो आप इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मिस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सपीरियंस करके और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अगली बार आपको ये इंटरव्यू और ये पूरी प्रोसेस और इजी लगेगी, क्योंकि आप एक बार इससे गो थ्रू कर चुके हैं। तो किसी भी तरह डिमोटिवेट मत होइए, अच्छी तरह प्रिपेयर करिए। मुझे लगता है कि मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं।
कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सभी क्वेरीज़ को एड्रेस कर पाऊँ। इसके अलावा मेरे पास एक और नोटिफ़िकेशन है, तो ऑलिव बोर्ड एक कोर्स लेकर आया है कुछ, जो कि पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच है। तो आपको जो रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके लिए, और बहुत ही अच्छे से वो पर्सनल गाइडेंस है, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज का है, जितने भी एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेक्निकल पार्ट है, हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा थ्रू लाइव क्लासेस। और उसके अलावा आपका पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू होगा। तो बहुत ही जो रिटायर्ड फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी हैं, और जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं जीएम लेवल, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। और उसके अलावा जो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, जो कि टेक्निकल पार्ट है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगी। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप ज़रूर उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके और उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप ये कूपन कोड यूज़ करें, एक्स्ट्रा। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कोर्स में। तो आप ज़रूर उस कोर्स को एक बार देखें, आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको फीडबैक भी देंगे आपके पूरे इंटरव्यू का, और आप किस तरह से किन एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, सभी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो आई बिलीव इतना सफिशेंट है हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन के लिए, कि किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं इंटरव्यू को। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करें, और आप काफ़ी लंबे रास्ते तक आ चुके हैं, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, तो पूरे मोटिवेशन के साथ अपना 100% देके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।